روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت تمام سننے والوں کے ساتھ اور آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہر صبح ہر روز آپ کی خدمت میں اس ایمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ آپ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ کا کام کرتا ہے۔ یہ کلام ہماری رہبری کرتا ہے، یہ کلام ہماری گائیڈنس کرتا ہے، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں، اور ہم کلام اقدس میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 ہم تلاوت کریں گے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح القدس کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ آئیں ایک اور آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 19، 20، 21۔ کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: پس جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ میرے عزیزو، ہم بائبل سٹڈی کر رہے ہیں کافی دنوں سے، روح القدس کے پھلوں میں رکاوٹ کا باعث جو چیزیں ہیں۔ آج ہم جس لفظ پر غور کریں گے وہ ہے بغض۔ جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کو جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لفظ بغض جو ہے وہ ہمیں 5 مرتبہ ملتا ہے، اور اسی طرح جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ نئے عہد نامہ میں کرتے ہیں تو وہاں پر یہی لفظ بغض جو ہے یہ 2 مرتبہ پایا جاتا ہے۔ ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر لفظ بغض جو ہے یہ 7 مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ بغض لفظ جو ہے عبرانی متن کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ثانیہ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عبرانی زبان میں اس لفظ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ثانیہ، جس کا مطلب ہے دل ہی دل میں کسی سے نفرت رکھنا۔ اسی طرح جب ہم یونانی متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی لفظ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فتنیوس، فتنیوس، جس کا مطلب ہے، ان دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے: مخالفت، دشمنی، عداوت، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے ایسا نفرت انگیز رویہ رکھنا، ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر ہی اندر کسی سے نفرت رکھنا، یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ قدیم زمانہ میں بھی اور دور حاضر میں بھی لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، رکھتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم نے اس عادت کو، اس سن کو اپنی زندگی میں سے باہر نکالنا ہے تاکہ روح القدس کے پھل لگیں۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 37 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4 کے اندر یہ بات درج ہے۔ یہاں پر خوبصورت ایک پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ پیٹرن کون سا ہے؟ بزرگ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، اور یوسف خدا کے ساتھ وفادار تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اپنے دنیاوی باپ کا اور آسمانی باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4: اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ
उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखते थे और ठीक तौर पे उससे बात भी ना करते थे। मेरे अजीजों, यहां पर बाप की प्यार और मोहब्बत जो यूसुफ के साथ थी, उसकी बना पर उसके भाई जो थे उससे बुग़्ज़ रखने लगे। और इसी तरह जब हम पैदाइश की किताब और उसका 37 बाब और उसकी आयत मुबारक 5 का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे, और भी बुग़्ज़ रखने लगे, नफरत रखने लगे, दिल ही दिल में उससे दुश्मनी रखते थे, दिल ही दिल में उनसे हसद करते थे, और इसी तरह उनके अंदर एक बुग़्ज़ की, नफरत की दीवार जो है वो खड़ी हो गई। जब हम पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी 8 आयत मुबारक का मुताला करते हैं, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखने लगे। सो मेरे अजीजों, बुग़्ज़ जो है ये एक ऐसी नसूर की तरह की बीमारी है जो ज़ाहरी तौर पर तो नजर नहीं आती, लेकिन लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे से नफरत रखते हैं। इसको बुग़्ज़ कहा जाता है। ये नसूर ईमानदारों के अंदर भी है, कलीसियाओं के अंदर भी है। जब ये हमारी जिंदगी के अंदर बुग़्ज़ होता है तो फिर रूह कुदस के फल जो हैं वो नहीं लगते। मेरे अजीजों, हमें इसको अपनी जिंदगी से अलग करना है और हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है, जो कि रूह कुदस का पहला फल है। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करता हूं। जब हम इल्म शरीयत का मुताला करते हैं, जब हम तौरात शरीफ का मुताला करते हैं, जब खुदा ने बुजुर्ग मूसा को शरीयत दी तो उसमें बुग़्ज़ के लिए क्या कानून था, क्या कायदा था, मैं ये आपके सामने तिलावत करता हूं। अबार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 17 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना। तू अपने दिल में अपने भाई के से बुग़्ज़ ना रखना। मेरे अजीजों, आज भी हमें जरूरत है कि हम अपनी कलीसियाई भाइयों से, अपने मसीह भाइयों से, बल्कि हर इंसान के साथ मोहब्बत से पेश आएं और बुग़्ज़ अपने दिल में से निकाल दें। इसी तरह जब हम ज़बूर शरीफ का मुताला करते हैं तो ज़बूर की किताब उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 14 के अंदर बुग़्ज़ के बारे में लिखा हुआ है, तूने देख लिया है। खुदा बुग़्ज़ रखने वालों को देखता है आसमान से। लिखा हुआ है, तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ को देखता है। तू शरारत और बुग़्ज़ को देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। याद रखें, अगर आप किसी के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, किसी के साथ शरारत करते हैं, तो याद रखें खुदा आपको देख रहा है और फिर उसका बदला खुदा आपको देगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उस शख्स को पता नहीं होता जिसके बारे में आप बुग़्ज़ रख रहे हैं। जब उसके साथ कुछ भी हैपन हो जाता है आपके बुग़्ज़ की वजह से, आपकी शरारत की वजह से, तो खुदा आपको देख रहा है, फिर खुदा आपको बदला देता है। ऐसे शख्स के बारे में जो बुग़्ज़ रखने वाला है, पौलुस रसूल इसके बारे में क्या फरमाते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत मुबारक, बुग़्ज़ रखने वाले लोगों को खुदा नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। ऐसे लोग जो अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, खुदा उनको पसंद नहीं करता, खुदा उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। आए कलाम मुकद्दस की आयत मुबारक पढ़ते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 28 और 29 आयत मुबारक के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया,
ताकि नालायक हरकतें करें। वो हरकतें कौन सी हैं? बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदगोई से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से ममूर हो गए। मेरे अजीजों, जब हम खुदा को नहीं पहचानते, जब हम उसके कद के अंदाजा तक नहीं पहुंच पाते, जब हम उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल पैरा नहीं होते, तो फिर खुदा हमें नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है और उसमें जो चीज़ें हमारे बदनों के ऊपर काबज हो जाती हैं वो कौन सी हैं? उनमें झगड़े हैं, मकारी है, बुग़्ज़ है। ये चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर सरैत कर जाती हैं, फिर रूह कुदस के फल जो है वो नहीं लगते। मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि कलाम मुक़द्दस हमें यही फरमाता है कि हम इस बुग़्ज़ को अपनी ज़िंदगी में से, अपने ख्यालात में से, अपने दिल में से इसको एक तरफ कर दें और रूह कुदस को मौका दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में रूह कुदस के फल लगे और आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार की रूह आ जाए, ताकि कलीसिया में अमन, चैन, सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे जलाल के लिए। ओ खुदाउन, शुक्रगुजार हैं कि तूने जिंदों को ज़मीन पर कायम रखा और हमारी ज़िंदगी में ये नहायत कीमती वक्त बख्शा कि हम बाहम मिलकर तेरे जलाल की गवाही का सबब बने। हमने तेरे कलाम की बातों को सुना है, हमने तेरे कलाम के अनमोल मोतियों को अपनी ज़िंदगी में लिया है। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदा जितने सामीन ने, जितने नाजरीन ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है और सुन रहे हैं, इस कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियों को तब्दील करना, इनकी सोचों को बदलना, इनके ख्यालात को तब्दील करना और ये तेरे कलाम को कबूल करें और इनकी ज़िंदगी में रूह कुदस के फल लगें और तेरा नाम इज्जत, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन, जितने सामीन नाजरीन तेरे इस खुदावन कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, इन सब को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। अगर इनमें से कोई भी बदनी तौर पर बीमार है, आज यीशु के नाम से उसको हील करना। अगर किसी खानदान में जादू, टूना, दागा, तवीज़ है, यीशु के नाम से उसको बसम करना। और खुदावन, अगर कोई बेरोजगार है तो यीशु के नाम से उसको रोजगार अता करना। अगर कोई माली मुश्किलात में, यीशु के नाम से उसकी माली मुश्किलात को ओ खुदावन दूर करके वसाइल मुहैया करना। अगर कोई कर्ज की लानत में है, यीशु के नाम से उसकी इस कर्ज की लानत को दूर करना। अगर कोई बे औलाद है तो यीशु के नाम से उसको सबे औलाद बनाना, ताकि तेरा नाम इज्जत, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद, जितने लोग इस वक्त इस दुआ को सुने, इस दुआ के वसीला से इनकी ज़िंदगियों में बरकत ही बरकत हो और इस कलाम के वसीला से ये खुदावंद रूहानी तौर पर बेदार हों और सारा जलाल तेरे बेटे के नाम को मिले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों का ऊंची आवाज़ से आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को और अपने अजीज़ों कारब के व्हाट्सएप पर सेंड करें ताकि खुदा उनको भी और आपको भी बरकत दे।